कि मैं हम्बल हो गया हूँ पहले से बहुत, बिकॉज मैंने फेलियर्स बहुत सारे देखे हैं। तो प्लान ए यूपीएससी को रख के 1-2 साल दो, एंड इफ इट्स नॉट वर्किंग आउट आप प्लान बी पे काम करो। तो वो एक ऐसा लो पॉइंट था जहाँ पे आई थिंक पीयर ग्रुप बिकेम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर मी। अब आप एग्जामिनेशन मूड में रहोगे तो आप अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो मेंस में आप जितना लिखोगे उतना सीखोगे। फेलियर्स को देख के आप सिस्टम को ब्लेम मत करो। So hi everyone, tonight we have with us Asad, who has scored under 100. Finally, for that feat, congratulations first of all. How Thank are you you. seeping in that information? मतलब I know you personally, I've seen you across for quite some time. तो कैसा लग रहा है कि मतलब एग्जाम तो क्वालिफाई करना is one step, but getting under 100, how are you taking it? आई एम ट्राइंग टू टेक इट। अभी क्या हुआ कि जब से रिजल्ट आया सो मुझे अभी भी सीप इन कर रहा है, बिकॉज अभी एक ही वीक हुआ है अराउंड। तो इट्स रियली टफ टू बिलीव कि मेरी ही रैंक 86 आ गई है, बट अभी धीरे धीरे करके इट्स सिंकिंग इन, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट द एफर्ट दैट आई पुट इन हैज फाइनली रीप्ड सम बेनिफिट्स फॉर मी। That's great. Can you tell a bit about your journey? Like, मतलब you graduating from college and working across, and then taking the plunge and finally preparing it like neck deep into it. So, how was your overall journey? What were the various challenges that you faced around it? So this started in 2019. So I already had this in my head that I'm going to prepare for UPSC because I wanted to join the Indian Foreign Services, and this was the only way that you can join the IFS. So I got placed from my college. I am a graduate from MNNIT Allahabad in mechanical engineering, and after graduating I joined an automobile firm, worked there for 1 year, but I was preparing back then too. But I failed my first prelims and realized that I cannot work as well as prepare for this exam because it takes more than what I was given in. So I just resigned from my job, came back home in 2021, gave my first honest attempt in which I reached luckily to the interview stage, and everything was working out well, and I thought that this is my time. And then on 31st May 2022 I was out of the list. So that was a setback. That was, I think, one of the lowest days of my life, because I was expecting to go there and then you feel like there's a huge fall, and again you start climbing from prelims, mains and interview. So that was a tough day, but then luckily I got through the prelims again, got through mains this year, and finally got a rank 86. So it has been quite a journey, and there have been a lot of lows and highs. When you get a result, finally going to give interviews for the very first time, you go to give mock interviews, you feel like an important person. So all of this was really nice when I was going through the preparation. So there were high, there were lows, but then everything turned out to be well towards the end. Got it. So college के बाद you started preparing, job का भी साथ में किया, and मतलब फिर से डिटेल में स्टडी की, तो मतलब how and why did you decide to go for it in the first place? किस तरीके से सोचा, क्या अप्रोच थी, मतलब was there any person who was influencing you in that decision? How important was your peer group while taking that decisions? तो दिमाग में तो हमेशा से था कि फॉरेन सर्विसेज करनी है, फॉरेन सर्विस में ज्वाइन करना है, बिकॉज डिप्लोमेसी और डिप्लोमैट्स को देखता था, कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक्स पढ़ता था। जैसे काफ़ी डिप्लोमैट्स ने अपनी बायोग्राफीज़ लिखी हैं, अपनी लाइफ स्टोरीज लिखी हैं, तो वो पढ़ के अच्छा लगता था। तो यूपीएससी इसलिए दिमाग में था इनिशियली, एंड आई एम लकी कि आई होपफुली आई जॉइन दैट सर्विस। तो ये दिमाग में था, एंड देन लकीली कुछ इकोसिस्टम ऐसा बनता गया ओवर द टाइम। जैसे मेरे कलीग्स थे कंपनी में, 2 कलीग्स थे जो तैयारी कर रहे थे मेरे साथ, और जैसे द्विज गोयल है हु इज़ AIR 71 दिस ईयर, उसको साथ ही मैंने एंथ्रोपोलॉजी प्रिपरेशन किया। सुब्रतो शर्मा मेरा एक और फ्रेंड है हु इज़ AIR 358, माधव भारद्वाज। सो ऑल ऑफ दिस पीपल, ये सब मिले और कुछ इकोसिस्टम ऐसा बनता गया कि लोग तैयारी कर रहे हैं, वी आर फेलिंग टुगेदर, हम लोग साथ ही, अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है, कभी बुरा आ रहा है। तो इन ऑल दिस प्रोसेस क्योंकि लोग थे साथ में, तो आई थिंक इट वर्कड आउट फॉर वेल। बाकी तैयारी में जैसे पीयर ग्रुप इज समथिंग जो तुम्हारा साथ में बना, लाइक कॉलेज साथ का बंदा, कॉलेज का बंदा, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि बीच में कोविड का एक फेज आया जिसमें मतलब you were not able to meet with these folks, या फिर मतलब ऑफलाइन कोचिंग या फिर that guidance wasn't possible. So how did you ensure कि that ecosystem stays strong, वो knowledge channelize सही तरीके से हो रही है, and more importantly एक peer group का फ़ायदा quantitative sense में कैसे किया कि like analyzing the questions, improving कि what is not going right and how to work about it? तो जैसे कुछ लोगों के केस में तो होता है कि पेयर ग्रुप, दे डोंट नीड पेयर ग्रुप, कुछ लोगों को ज़रूरत ही नहीं होती लोगों की,
एंड वो अकेले पढ़ाई करते हैं एंड पढ़ाई हो सकती है अकेले भी. बट मेरे केस में इनिशियली पेयर ग्रुप नहीं था. मैं कहूँगा 2020 के अराउंड तो नहीं था, बट बाय द टाइम जब मेरा दूसरा अटैम्प्ट आया 2021 वाला अटैम्प्ट जो था, सो मेरा ये ग्रुप बना जिसमें मैं था, द्विज था, सुब्रतोष था, माधव भारद्वाज थे. तो ये लोग जब साथ में आए तो एक चीज़ इससे ऐड ऑन ये हुई कि हम लोग पढ़ते भी साथ में थे. मतलब क्या क्या कर रहे हैं एक दूसरे से अपडेट लेते रहना, एक दूसरे की कॉपीज़ वैलिडेट करना, उनको बताना कि तुमने क्या गलत किया या फिर मैं क्या सही कर रहा हूँ. जैसे कभी कभी द्विज के मार्क्स अच्छे आते थे तो मैं उसकी कॉपी देख के बोलता था कि भाई मेरे क्यों नहीं आ रहे अच्छे, व्हाट इज़ द डिफरेंस. तो वहाँ से एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था. फिर जब हम लोग सारे चारों लोगों ने लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया था 2021 में, एंड चारों का नहीं हुआ था फाइनल सिलेक्शन, तो वो एक ऐसा लो पॉइंट था जहाँ पे आई थिंक पीयर ग्रुप बिकेम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर मी. तो उस पॉइंट ऑनवर्ड्स टिल माई रिजल्ट्स जो पीयर ग्रुप का रिलीवेंस है वो और ज़्यादा बढ़ गया. बिकॉज प्रीलिम्स से पहले हम लोग के पास सिर्फ 4 दिन थे तैयारी करने के लिए, एंड वो 4 दिनों में हमने गूगल मीट पे बैठ के पूरा दिन साथ में पेपर्स बनाए, पेपर PYQ एनालाइज करे. तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट था. फिर कोविड वाली बात जो आप कर रहे थे, तो कोविड में क्या हुआ था कि एक आई डोंट नो कि एक तरह का ये इकोसिस्टम मुझे लगा कि बन गया था कि मैं लॉक्ड हूँ. मैं तो एनीवे लॉक्ड था बिकॉज तैयारी चल रही थी. कोविड होता नहीं होता आई वुड हैव बीन लॉक्ड ओनली, बट द वर्ल्ड वाज आल्सो लॉक्ड विद मी. तो काफ़ी क्लोज सा एनवायरनमेंट था. टफ तो था बिकॉज बाहर जाने को नहीं मिलता था. आई एम समवन हु लव्स टू वर्कआउट, हु गोज़ टू जिम, हु गोज़ टू प्ले स्पोर्ट्स, तो वो नहीं कर पा रहा था. तो फिर गूगल मीट थी कि गूगल मीट पे चारों आ जाते थे. वीक में कभी एक बार होता, कुछ और हो जाता था, कभी पढ़ाई के लिए आ रहे हैं, कभी कुछ और चीज़ के लिए आ रहे हैं. तो वो चीज़ ने काफ़ी सपोर्ट किया. और हेल्प तो मेरी पढ़ाई में बहुत हुई कि कई नोट्स तो ऐसे हैं जो हमने कॉमन ही बना रखे हैं वन ड्राइव पे. जैसे एथिक्स के नोट्स हमने कॉमन बनाए हैं एंड हम सबके अच्छे मार्क्स आए एथिक्स में लकीली. तो आई थिंक पीयर ग्रुप मेरे लिए इन दिस अटेम्प्ट वाज एक्सट्रीमली हेल्पफुल. यू ऑल्सो मेंशन कि री-अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन, कि एक बार जैसे तुमने प्रीलिम्स दिया एंड फिर उसके बाद दिया एंड यू वर एबल टू लैंड अप टू द इंटरव्यू. सो हाउ डू वी ड्रॉ दैट लाइन की, बिकॉज इट्स एन इनफाइनाइट प्रोसेस कि आप अटेम्प्ट दे सकते हो एंड यू कैन ऑलवेज टाइम योर अटेम्प्ट्स एज वेल. तो वो कैसे कोई समझ सकता है, या फिर आर देयर एनी मेथड्स टू इवैल्यूएट दैट पर्टिकुलर पार्ट एज वेल? तो ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम आपको अराउंड 6 to 9 अटैम्प्ट देते हैं अटैम्प्ट करने के लिए. मतलब आप कर सकते हैं इतनी बार अटैम्प्ट. लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ये क्योंकि साइकिल पूरी 1 साल की है तो हम लोग एक लूप में फंस जाते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने प्रीलिम्स दिया, आई क्वालिफाइड, मेंस दिया, आई क्वालिफाइड, इंटरव्यू, अनफॉर्चुनेटली आई एम आउट ऑफ द लिस्ट. देन अगेन आई एम इन द प्रीलिम्स मोड, अगेन इन द मेंस मोड. तो अब आप एग्जामिनेशन मोड में रहोगे तो आप अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, उन पर काम भी नहीं कर पाओगे. तो ये मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो सकती थी बिकॉज अगर मैं 2020 वाला प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेता तो अभी इफ़ आई लुक बैक एट इट तो आई थिंक 2020 में जो प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाया दैट टर्न आउट टू बी बेनिफिशियल फॉर मी, क्योंकि मैं फिर ऑप्शनल पे अच्छे से काम कर पाया था. अदरवाइज मैं मेंस मोड में चला जाता. तो मैंने 3 अटैम्प्ट दिए थे एंड दिस प्रीलिम्स आई हैड नो इंटेंशन टू अटैम्प्ट दिस ईयर. मेरा मन था कि मैं एग्जिट ले लूँगा इस प्रोसेस से अभी के लिए, मे बी मैं 1-2 साल बाद वापस आऊँगा. तो एंड मैं आई रियली सपोर्ट दिस कि इंसान को अगर लगे कि यू नो कि मैंने अपना कंप्लीट दे दिया एंड आई हैव नो रिग्रेट्स इन द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स जो मैंने डाला है, और तब भी अगर सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं आप तो इट्स टाइम टू डू समथिंग एल्स. अगर आप 3-4 अटैम्प्ट आपके हो गए हैं, ऑनेस्ट अटैम्प्ट हो गए हैं, तो यू कैन ऑलवेज टेक एन एग्जिट. आप कुछ और कर सकते हो, आप जॉब कर सकते हो एंड उसके आप 1 साल बाद वापस आ सकते हो या फिर 1-2 साल बाद वापस आ सकते हो. क्योंकि अभी जो गलतियाँ आपसे हो रही हैं वो आपके माइंडसेट की वजह से हो रही हैं, क्योंकि आपका माइंडसेट एक नेगेटिव माइंडसेट बन चुका है. आप एक क्लोज एनवायरनमेंट में कर रहे हो, आप स्ट्रेस्ड हो, आपको एंग्जाइटी है, यू आर हैविंग ऑल दोज मेंटल हेल्थ इश्यूज जो आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे अंटिल आप इस स्पेस से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होकर बाहर आओ, एक वेलनेस ब्रेक ले लो एंड देन आप दोबारा आके इसको अटेम्प्ट करो. तो आई थिंक आइडेंटिफाइंग दैट स्वीट स्पॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप निकलो और यू कम बैक टू इट इफ़ यू वांट टू. एक चीज़ और जो बहुत कही जाती है कि हैविंग अ प्लान बी, दैट्स ट्रू फॉर एवरी एग्जामिनेशन. जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे थे, अगर IIT की तैयारी कर रहा होता है कोई, तो पहले जैसे होता था AIEEE की पैरेलल हो रही है. तो व्हाट्स योर थॉट कि प्लान बी में जाके आप 2 नाव पे चलने की सोचो, या प्लान बी कैन ऑल्सो बी कि नोइंग एन एग्जिट रूट, जैसे अभी यू मेंशन्ड कि कुछ बीच में कर लिया क्योंकि माइंडसेट में प्रॉब्लम है, तो वो कैसे कोई गेज कर सकता है? क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? व्हाट ऑल रिसर्च यू डिड इन दैट फ्रंट? तो ये एक्चुअली मैं तो बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ कि आपके पास प्लान भी होना चाहिए आफ्टर अ वाइल. ये नहीं है कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी एंड यू आर ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन प्लान बी. आप थोड़ा टाइम दो, प्लान ए यूपीएससी को रख के 1-2 साल दो एंड इफ इट्स नॉट वर्किंग आउट आप प्लान बी पे काम करो. जैसे मेरे केस में प्लान बी वॉज कि मैं पब्लिक पॉलिसी स्पेस में जाऊँगा.
एंड मैं वहाँ मास्टर्स वगैरह करूँगा. सो देयर इज़ अ फेलोशिप ऑफ कॉल्ड एज लैम फेलोशिप, PRS लेजिस्लेटिव की है. इस साल मैंने उसके लिए अप्लाई किया था एंड लकीली आई वाज वन ऑफ द पीपल गॉट सेलेक्टेड. एंड वो 19 जून से स्टार्ट होने वाली थी और वो 1 साल करके मेरा प्लान था कि शायद मैं मास्टर्स जाऊँगा पब्लिक पॉलिसी में करके, आई विल डू समथिंग एल्स. मैं इसी सोशल इम्पैक्ट सेक्टर में ही काम करने वाला था. एंड तो ये क्योंकि यूपीएससी स्पेस इतना कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ा है इसकी प्रिपरेशन दैट अ लॉट ऑफ अदर स्पेसेस ओवरलैप विद इट. तो आपको वो ओवरलैप आइडेंटिफाई करके आपका एफर्ट कम होगा अगर आप उन पाथ की तरफ एग्जिट लोगे. मेरा जो फ्रेंड है शुभ्रतोष, उसने इस बार कैट दिया था एज अ प्लान बी एंड ही गॉट 99.5 परसेंटाइल इन दैट. काफ़ी अच्छे कॉलेजेस उसके कॉल आया था. तो ये एक और ऑप्शन होता है क्योंकि आप जब यूपीएससी तैयारी करते हो तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता होती हैं. तो आप एक कॉमन इंसान जिसने यूपीएससी तैयारी नहीं करी है, यू ऑलवेज हैव एन एज ओवर देम. तो ये चीज़ आइडेंटिफाई करना भी ज़रूरी है दैट व्हेन यू आर स्टडीइंग तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, आपको कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनालिटी पे ऐड ऑन कर रहा है एंड आपकी जो प्लान बी होने वाला है उसमें भी आपको वो हेल्प करेगा. एंड आई थिंक प्लान बी अभी तो इतनी सारी फेलोशिप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज चला रही हैं, इन सब में प्लान बी मतलब कैन बी वन ऑफ द ऑप्शंस. आगे जाके लोग यूएन में काम करते हैं, यूएनडीपी में काम करते हैं. सो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन शुड बी ओपन टू एवरीवन. आई ऑल्सो नो असद पर्सनली, लाइक जैसे मैंने मेंशन किया था कि हम लोग साथ में ही एनआईटी इलाहाबाद में पढ़े एंड बोथ ऑफ अस हैव बीन इनटू म्यूजिक एंड आई नो असद इज अ ग्रेट ड्रमर. मतलब अ लॉट ऑफ रॉक इन्फ्लुएंस इन जनरल. आई थिंक इलाहाबाद में एक यूपीएससी अगर एक तरफ है तो एक तरफ हम लोग कहीं ना कहीं रॉक म्यूजिक या म्यूजिक इन जनरल कर रहे थे. तो हाउ डिड इट हेल्प यू सेल थ्रू दिस प्रोसेस? मतलब हाउ डिड यू मेंटेन योर हॉबीज अक्रॉस दिस जर्नी? साथ में लाइक एक पीयर ग्रुप वाज द गुड पार्ट दैट यू हैड कि साथ में लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, बट समथिंग दैट इज कम्प्लीटली पर्सनल टू यू. कुछ इस दौरान कोविड के या ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर प्रोसेस एनी अदर न्यू हॉबी दैट यू इनकलकेटेड? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या होता है ना, जब आप दिन में 8 घंटा 9 घंटा पढ़ रहे हो तो किसी को पढ़ना अच्छा नहीं लगता. मतलब एटलीस्ट पर्सनली मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता, बट उतने घंटे डालने पड़ रहे थे पढ़ाई में. तो उसके साथ साथ जैसे मैं ड्रम्स बजाता हूँ तो मेरे रूम में ड्रम किट लगी हुई थी. सो मैं दिन में कभी प्रैक्टिस कर लेता था, कभी रात में प्रैक्टिस. रात में तो खैर ड्रम्स नहीं बजा पाता था बिकॉज बहुत नॉइज़ क्रिएट होती थी. तो मैं ड्रम्स प्ले करता था. फिर क्या हुआ, जब मैं कोविड आया तो क्योंकि सब लोग घर पे आ गए थे तो ड्रम्स बजाना वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी. बहुत लोग डिस्टर्ब हो रहे थे. तो फिर मैंने गिटार सीखना स्टार्ट किया एंड दिस वाज द टाइम कि मैंने गिटार सीखा. फिर मैंने हारमोनिका बजाना सीखा. आई स्टार्टेड सिंगिंग, थोड़ा थोड़ा गाना गाता रहता था. कभी कभी तो हम लोग जो मीट पे आते थे हम सारे दोस्त, उस पर आई यूज्ड टू सिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स. जैसे मुझे अभी भी याद है न्यू ईयर 2022 में रात में हमने 3 बजे तक कुछ ऐसे किया था दैट वी आर ऑल सिंगिंग, वी आर ऑल हैविंग फन. तैयारी चल रही थी बट देन उसके साथ साथ दिस वाज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा मुझे एक और हॉबी है कि मैं कोरा पे लिखता हूँ. सिंस 2016 में लिखता आ रहा हूँ. तो मैं ब्लॉग्स लिखता था, दो वो बहुत कम हो गया था क्योंकि सोशल मीडिया मैंने कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया था. आई डिड नॉट हैव इंस्टाग्राम, फेसबुक, और कोरा था बट मैं कभी नहीं लिख पाता था उस पर. तो वो थोड़ा डाइल डाउन हो गया था, बट दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग दैट आई यूज्ड टू डू. तो हॉबीज़ तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है टू फाइंड सम सोलेस, बिकॉज काफ़ी ग्रूलिंग और लंबी जर्नी हो जाती है. लेकिन अगर हॉबीज़ आपके पास हैं एंड यू आर वर्किंग ऑन देम तो थोड़ा सा दिमाग अच्छा शांत रहता है. फिर से अगर इलाहाबाद की बात करें, जैसे मैंने मेंशन किया कि एक तरफ हम लोग अगर म्यूजिक कर रहे थे तो यूपीएससी का भी गढ़ है ही इलाहाबाद. करेक्ट. तो हाउ डिड इट इन्फ्लुएंस यू कि जैसे कॉलेज में तुम्हारा जैसे हमेशा से रहा है कि आईएफएस बनने का, तो कितना वो इलाहाबाद से एक थॉट आया या फिर क्या उस इकोसिस्टम ने तुम्हें कहीं हेल्प किया, उस लाइक एनवायरनमेंट ने ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? तो एमएनआईटी इलाहाबाद में क्या हुआ था ना कि अच्छा उस टाइम मुझे पता था कि मुझे तैयारी करनी है, बट आई ऑल्सो हैड दिस इन माइंड कि मुझे कॉलेज मिस नहीं करना है. मुझे नहीं मिस करना है कि कॉलेज में मैं जो फन किया था या जो चीज़ें सीखी कॉलेज में वो मैं नहीं सीख पाता अगर मैं पूरे टाइम प्रिपरेशन कर रहा होता. तो ये मेरा पर्सनल डिसीजन था, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम भी लगा क्रैक करने में. लेकिन वहाँ पे रह के मुझे एक फ़ायदा हुआ कि क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे तो अभी दिल्ली से पहले जो हब था वो इलाहाबाद ही था. तो उस टाइम पे इतने सारे लोग तैयारी वहाँ कर रहे थे और वहाँ से आप निकल के आते तो हमारे कॉलेज के अलुमनाई जो हैं हु आर स्टिल इन सर्विस, दे हैव अ कंसिडरेबल नंबर. तो वो एक मोटिवेशन भी था कि लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से निकल के जा रहे हैं एंड दे आर क्रैकिंग द सर्विसेज, दे आर गेटिंग इनटू सर्विसेज. तो दैट वाज अनदर मोटिवेशन फॉर मी. बट हाँ, मेरा इस अंदर ये था कि मुझे कॉलेज का फ़न लेना है एंड आई वांट टू डेवलप माय पर्सनालिटी एंड आई लिटरली डिड दैट इन कॉलेज. तो नो रिग्रेट से कॉलेज में नहीं पढ़ाई करी ज़्यादा यूपीएससी के लिए. लेकिन हाँ, कॉलेज में काफ़ी चीज़ें सीखी. म्यूज़िक में अच्छा टेस्ट डेवलप किया, म्यूज़िक करना सीखा, लोगों को बात करना सीखा, नए लोग बनाए. तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस इन कॉलेज. सो
कॉलेज के स्टूडेंट जैसे मतलब यू मेंशन कि कॉलेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, नई चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए। मेजॉरिटी ऑफ पीपल अगर बात की जाए तो पहली बार शायद वो घर से दूर जाते हैं, वो अपना पीयर नेटवर्क, अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं। बट अगर कोई स्टूडेंट है जो, क्योंकि हर कोई वहाँ पे एक अलग रेस में दौड़ने की बात कर रहा है, कोई जीआरई की सोच रहा है, कोई अपना कैट का सोच रहा है, तो कोई आईएएस का, तो जिसको अगर आइडिया ना हो जिस स्टूडेंट को, तो कैसे वो डेवलप कर सकता है, कैसे वो अंडरस्टैंड कर सकता है एक आईएएस एग्जाम के बारे में? क्या एक सही टाइम हो सकता है कि वो अपनी प्रिपरेशन की, वाइल दे आर नॉट मिसिंग आउट ऑन थिंग्स बट दे आर ऑल्सो डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर यूपीएससी, तो उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए? तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कॉलेज में है अभी एंड उनको एक क्लैरिटी है कि उसे यूपीएससी अटेम्प्ट करना है, तो आई थिंक मैं क्या कर सकता था, अगर इफ़ आई लुक बैक एट इट, कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर सकता हूँ। बिकॉज वो एक ऐसी चीज़ है जो ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपीएससी वाले लोगों को करनी चाहिए। आई थिंक अगर एक नॉर्मल इंसान भी रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ेगा, इट विल ऐड ऑन टू देयर नॉलेज। तो ये कर सकते हैं कि यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, तो एटलीस्ट जब तक कॉलेज से निकलेंगे आपके पास एक बड़ा नॉलेज बेस होगा कि कंट्री में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, वर्ल्ड प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं। और जब कभी कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती एंड फिर आप उसे गूगल करते हो, तो वो चीज़ें आपका नॉलेज बेस कॉन्टीन्यूसली बढ़ाती रहती हैं। सो आई थिंक एक ये हॉबी है, अगर आप कॉलेज में काम कर रहे हो, आप फन कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, यू डोंट वांट टू मिस ऑन दैट, बट उसके साथ आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। एप्टीट्यूड ऑफ नॉलेज एक बिल्ड करना। एग्जैक्टली, मे बी 30 मिनट्स, हाँ, 1 आवर आप न्यूज़पेपर दे सकते हो। उसके अलावा फिर मुझे लगता है कि इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन, क्योंकि 21 के से बड़ा होके आप अटेम्प्ट अपना दे सकते हो, एंड जितना जल्दी आप सर्विस में आओ उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा इन योर करियर ऑल्सो, एंड द इंटरव्यू बोर्ड ऑल्सो रिवॉर्ड्स यंग कैंडिडेट्स, आई हैव सीन इन द स्कोर। तो उस केस में आप कर सकते हो, आप यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड करो, यू फिगर आउट योर ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लेने वाले हो, एंड आई थिंक कॉलेज एक अच्छा टाइम होता है कि अपना ऑप्शनल आप तैयार करके रख लो, क्योंकि वो इतना करंट ओरिएंटेड नहीं होता। तो आपके अगर नोट्स तैयार हो जाते हैं ऑप्शनल के, तो आधा काम तो आपका वहीं पे ख़त्म हो गया। तो आई थिंक आप इस तरह से एक कॉलेज स्टूडेंट रह के थोड़ा कम लोड लेके भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। दैट ब्रिंग्स मी टू ऑप्शनल वाला पार्ट कि दो अप्रोचेस रहती हैं, या तो आप हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स लो, जनरली जो इंजीनियर्स का या इन जनरल पीपल का रहता है कि अपने मनपसंद सब्जेक्ट से स्टार्ट किया फिर उस तरफ गए। तो मतलब व्हाट शुड बी द आइडियल अप्रोच, किस तरीके से ऑप्शनल को देखना चाहिए? आप पहले मन के बेसिस पे जाओगे, आप स्कोर के बेसिस पे जाओगे? तो मेरे साथ मुझे लगता है कि जैसे आपका जहाँ ग्रेजुएशन हुआ है ना, अगर आप वही ऑप्शन लेके प्रिपरेशन करते हो तो इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल। बट काफ़ी बार ऐसा होता है, देखा गया है कि इंजीनियरिंग ऑप्शनल जो होते हैं, जैसे मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, वो एक तो बहुत ज़्यादा लेंदी है, उसके अलावा उसमें स्कोर नहीं आ रहे थे अच्छे लोगों के, तो इसलिए, और ऊपर से शायद मेरा उतना अच्छा एप्टीट्यूड नहीं था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप फर्स्टली आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या इंटरेस्टिंग है, इनफ है, और क्या डूएबल है यूपीएससी के लिए। अगर है तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट अप्रोच। अगर नहीं है, जैसे मेरे केस में था, तो आप फिर उन ऑप्शन की तरफ जाओ जिनके रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हैं। जैसे पहले मैं मैथमेटिक्स से स्टार्ट करा था, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा एप्टीट्यूड होगा, थोड़ा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मैथ्स अच्छा लगता है तो करूँगा। मैंने सारी बुक्स भी खरीद ली थी, एंड उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, एंड इन 15-20 डेज आई रियलाइज कि ये तो मुझसे नहीं होने वाला, और अटेम्प्ट भी नहीं के लिए बहुत कम टाइम था। आई जस्ट हैड 7 months बैक देन। तो मैंने उसे गिव अप करा, और उसके बाद मैंने सोचा कि कौन सब्जेक्ट लूँ। तो आई गॉट अ फ्रेंड द्विज ही, जो एंथ्रोपोलॉजी से तैयारी कर रहा था। सिलेबस पढ़ा, अच्छा लगा, एंड आई जस्ट जम्प्ड इनटू इट। तो अगर आप एक बार ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो जो आपको लग रहा है कि आप इंटरेस्टिंग है आपके लिए, एंड आप ऑलरेडी उसमें 2 महीना कुछ लगा चुके हो, फिर मत चेंज कर। आई थिंक उसके बाद चेंज करना इट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो आप पहले ग्रेजुएशन सब्जेक्ट देखो, इफ दैट इज नॉट वर्किंग आउट देन गो फॉर अ सब्जेक्ट जिसकी गाइडेंस अवेलेबल हो और आपके लिए वो इंटरेस्टिंग हो। दैट वर्कड विद एंथ्रोपोलॉजी फॉर मी वेल। एंड व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बैकग्राउंड? मतलब जैसे यूपीएससी के जो एस्पिरेंट होते हैं, हिंदी मीडियम, मल्टीपल मीडियम्स, मल्टीपल चैनल्स, तो कहीं कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम का? मतलब दिस इज़ फॉर पीपल, क्योंकि अब यूपीएससी एक ऐसी चीज़ बन गई है जो क्लास 10th 11th से भी लोग सोच रहे हैं, तो मे बी दे कैन चॉक आउट देयर करियर जर्नीज इफ दे हैव द प्रोवाइडेड इकोसिस्टम। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मुझे ऐसा लगता है इसमें कि एक तो पहली बात, ऑप्शनल, अलग अलग ऑप्शनल जो है ना, उसमें जो अच्छे स्कोर करने वाले बच्चे हैं वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो कोई ऑप्शनल ऐसा बहुत ज़्यादा फेवर्ड नहीं है। पहली चीज़ तो कुछ लोगों को लगता है कि बहुत लो स्कोरिंग ऑप्शनल है, मे बी कोई बंदा ऐसा होगा जो उसमें अच्छा परफॉर्म कर जाए।
सेकेंडली मीडियम तो आई थिंक सर नहीं इतना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं क्रिएट करता है, क्योंकि आप किसी मीडियम में आंसर लिखें, इवन किसी मीडियम में आप इंटरव्यू दें, अगर आपका कंटेंट अच्छा है, बिकॉज कंटेंट इज किंग इन यूपीएससी, तो अगर आपका कंटेंट अगर जीएस में अच्छा है, आपका ऑप्शनल में अच्छा है, इंटरव्यू में अच्छा है, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा उसका। तो आई डोंट थिंक कि आपको मीडियम से कोई डिफरेंस क्रिएट होगा। ऑप्शन से हो सकता है बिकॉज रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल होंगे, किसी ऑप्शन के हो सकता है किसी और ऑप्शन के ना हो, तो हो सकता है, या फिर आपका एप्टीट्यूड हो किसी और में ना हो, तो दैट में क्रिएट सम डिफरेंसेस, बट मीडियम का तो सर कोई डिफरेंस नहीं होता। तो आई थिंक नो वन शुड गेट डिस्करेज थिंकिंग कि मैं किसी और मीडियम में लिख रहा हूँ या फिर किसी ऐसे ऑप्शन से कर रहा हूँ जिसमें आज तक रैंक ही नहीं आई है। इफ़ यू आर गुड एट इट यू विल बी रिवॉर्डेड। ये एग्ज़ाम की तैयारी कैसे बदलती है किसी को, मतलब एक जर्नी के सेंस में देखा जाए तो यू कमिंग फ्रॉम अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड देन रीडिंग अबाउट प्लेथोरा ऑफ सब्जेक्ट्स, यूपीएससी के लिए कहा भी जाता है कि एवरीथिंग अंडर द सन, तो what all skills have you acquired during this process? I understand कि you have a very good personality in terms of public speaking skills, but how do you ensure कि you use that knowledge in the right places? तो क्या चेंज हुआ है असद में ड्यूरिंग दिस 3 years, मतलब जस्ट फॉर द नॉलेज पार्ट ऑफ इट? पहली चीज़ तो मैं पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस आए हैं जो मुझे लगता है कि मैं आइडेंटिफाई खुद करता हूँ और लोगों ने भी आइडेंटिफाई करें कि मैं हम्बल हो गया हूँ पहले से बहुत, बिकॉज मैंने फेलियर्स बहुत सारे देखे हैं। तो इससे पहले क्या हुआ था लाइफ में, फेलियर्स उतने अच्छे से हैंडल नहीं करना आते थे, बट यूपीएससी एक चीज़ आपको सिखा देता है कि आप कहीं से भी आए हो, आपने कुछ भी पढ़ा हो, जब तक आप एग्ज़ाम को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, नंबर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एफर्ट नहीं दोगे, नंबर ऑफ आवर्स नहीं दोगे, तब तक आप फेल हो सकते हो। एंड कोई भी फेल हो सकता है, बी इट फ्रॉम एनी बैकग्राउंड। तो वो जब फेलियर आता है एंड आप उसको एक्सेप्ट करते हो, आई थिंक दैट्स वेयर द लर्निंग एक्सपीरियंस एक्चुअली स्टार्ट्स। क्योंकि मेरे केस में जो फेलियर आया एंड आई आइडेंटिफाइड इट एंड मैंने वो दोबारा वो गलती नहीं करी। 2020 में मैं प्रीलिम्स से फेल हुआ, आइडेंटिफाइड माई मिस्टेक्स, 21 में वो गलती नहीं हुई, इंटरव्यू में नहीं आ पाया, आई सॉ कि मेंस में कुछ गलतियाँ हुई हैं। और सर मेरा जो 2 हफ्ते थे आफ्टर माई प्रीलिम्स, आफ्टर माई फाइनल रिजल्ट्स ऑफ 2021, मैंने बस यही एनालाइज किया था कि मैंने क्या नहीं किया है और टॉपर्स ने क्या किया है। तो वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस से मुझे ह्यूमिलिटी आई है मेरी पर्सनालिटी में। आई बिकम मोर हम्बल एंड बट देयर इज़ नो लिमिट टू इट, वन कैन बिकम मोर हम्बल ऑलवेज। तो एक ये चेंज था। सेकेंडली एक मेरा चेंज मुझे लगा कि एक इंसान अच्छा प्लानर बन जाता है, क्योंकि इतने सब्जेक्ट्स हैं, इतना ज़्यादा सिलेबस है, आप कैसे उसे प्लान करोगे। तो मेरे प्लान्स ऐसे रहते थे कि इस महीने ये करूँगा, इस हफ्ते ये करूँगा, इस दिन ये करूँगा, इस हाफ में ये करना है। एंड मेरे पास एक वाइट बोर्ड था जिसपे हाफ बोर्ड पे सिलेबस लगा हुआ है और हाफ बोर्ड पे मैं पूरा वो एक रात पहले प्लान करता था कि कल क्या करना है, एंड दैट वाज राइट इन फ्रंट ऑफ माय बेड। तो मैं सो के उठा, मुझे पहली चीज़ मेरा प्लान दिखता था, तो मैं उस पर काम करना शुरू करता था। तो प्लानिंग बहुत अच्छी हो गई है मेरी। ह्यूमिलिटी तो अब मैंने जैसे बोला थोड़ा मुझे आ गया है, फेलियर्स से डील करना थोड़ा सीख गया हूँ। फिर परसिवरेंस थोड़ा डेवलप हो जाता है, लोग ग्रेटफुल हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए। जैसे मैं अभी कुछ भी अच्छा होता है तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है पहले से, बिकॉज आई हैव नॉट सीन दोज प्लेजर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इवन इफ माई कॉफ़ी इज़ गुड आई जस्ट फील के ओ वाह आज कॉफ़ी अच्छी है। तो ये एक चीज़ थी जो आई थिंक मुझे प्रिपरेशन में सीखने को मिली, एंड आई थिंक दैट दिस विल ऑलवेज हेल्प मी इवन इन सर्विस और अदरवाइज। इकोसिस्टम वर्सेस पीयर ग्रुप, मतलब जैसे इकोसिस्टम की अगर बात की जाए तो बहुत लोग दिल्ली आके प्रिपेयर करना प्रेफर करते हैं, वर्सेस पीयर ग्रुप। व्हाट वर्कड आउट बेटर इन योर केस कि यू वर प्रिपेयरिंग घर से ही, अलीगढ़ में रह के पूरा प्रिपरेशन कर रहे थे, तो व्हाट्स योर की टेक अवे अराउंड इट कि इकोसिस्टम दिल्ली आके प्रिपरेशन ज़्यादा ज़रूरी है या फिर पीयर ग्रुप, और वो कैसे कोई अंडरस्टैंड करे अपना? आई थिंक इसमें एक तो पर्सनल चॉइस या पर्सनल मतलब डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको लगता है कि आपको दिल्ली आना चाहिए एंड वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा तो आप दिल्ली आके पढ़िए। आपको लगता है आपको घर पे पढ़ना चाहिए तो घर पे पढ़िए। मेरे केस में क्या था, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो बहुत ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, और मुझे फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिसको बोलते हैं, बहुत होता है कि अगर आप पार्टी कर रहे हो मैं नहीं कर रहा, देन आई विल फील लाइक यार मुझे पार्टी करनी है। तो ये वाला फोमो के साथ और इतने डिस्ट्रैक्शन हो सकते थे, मुझे लगा मुझे दिल्ली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप अपने लाइफ के सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स जो हैं वो लगा रहे हो किसी एग्जाम के लिए, तो आप वो ऑनेस्टली लगाओ एंड बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, बिकॉज इफ यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट टू योर सेल्फ देन लाइंग टू वन सेल्फ इज आई थिंक इज वन ऑफ द वर्स्ट इन दैट यू कैन कमिट। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं दिल्ली तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं इकोसिस्टम जो आप बता रहे हो सर और पीयर ग्रुप, मैंने वो अपने घर पे बना लिया था। फॉर एग्जांपल दिल्ली आने की क्या एडवांटेज होती है, आपको मटेरियल इजीली अवेलेबल होता है,
तो मैंने एक फ़ोटोकॉपी शॉप का नंबर लिया था एंड वो मेरे घर पे पार्सल कर देते, मेरे जो भी मटेरियल मुझे चाहिए होता था, सारी टेस्ट सीरीज, वैल्यू एडेड मटेरियल्स, एनीथिंग दैट आई वांटेड, वो यहाँ से मैं घर मंगा लेता था। सेकेंडली कॉपी चेक करना होता है या फिर आपको जाके इवेलुएट कराना है किसी टीचर से, तो वो आप तो स्कैन करके आप भेज सकते हो ईमेल पे एंड वो चला जाता है। तो इकोसिस्टम आप घर पे बना सकते हो, जैसे मैंने बनाया था अपना पीए ग्रुप के लिए, मैं गूगल मीट पे आके लोगों से बात करता था एंड एट द सेम टाइम आई हैड द कंफर्ट ऑफ माई होम कुक्ड फूड, बेटर फैसिलिटीज टू लिव, ऑल्सो इमोशनल सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स सो इम्पॉर्टेंट। जैसे मेरी मदर का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा थ्रू आउट द प्रिपरेशन। इसमें इतने लूज आते हैं, मतलब रिजल्ट से पहले भी 2-3 दिन पहले मैं रो रहा था अपनी मम्मी के सामने के सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला, तो ये बहुत दिन आते रहते हैं। सो आई थिंक अगर कुछ डिसएडवांटेजेस हैं घर रहने की, आई डोंट थिंक कुछ हैं, बट कुछ एडवांटेजेस भी हैं। तो आई थिंक पर्सनल डिस्क्रिप्शन आप लीजिए एंड इकोसिस्टम आप कहीं भी बना सकते हो, आप किसी भी सिटी में हो, कहीं भी विलेज में भी हो, आप बना सकते हो क्योंकि इंटरनेट आ चुका है एंड अभी कुछ भी ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ रीच हो। एवरीथिंग इज सो डेमोक्रेटाइज्ड दैट यू कैन फाइंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन योर स्टडी टेबल एवरीवेयर इन इंडिया, सो दैट इज़ अ गुड पॉइंट। यू ऑल्सो मेंशन्ड कि स्टार्ट अर्ली, कि आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एग्जाम में टाइम हो सकता है और आपका माइंडसेट, दोनों को आपको चैनलाइज करना है एंड किस तरीके से आप इस एग्जाम के मल्टीपल स्टेजेस को टैकल कर रहे हो, दैट इंश्योर दैट डिफाइंस कि आप कैसे सक्सीड कर रहे हो। तो क्या टाइम एक आइडियल रहेगा कॉलेज के बाद? जैसे बहुत लोगों का होता है कि पहले जॉब कर लेते हैं, बिकॉज नॉट एवरीवन हैज़ द लाइक लग्जरी ऑफ हैविंग दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। सो हाउ कैन वन प्लान, और वो स्टेप कैसे डिसाइड कोई कर सकता है कि दिस इज वेयर आई क्विट, कि उसका एक क्वान्टिफाइबल, कि अगर प्रीलिम्स निकल गया है सपोज मेरा, या ये सब्जेक्ट, या आई हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर पार्ट, सो कैसे कोई डिसाइड करे उस चीज़ को? सो करेक्ट टाइम टू प्रिपेयर, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, आई थिंक कॉलेज में अगेन जैसे मैंने अभी बोला था आपसे कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो 3rd और फाइनल ईयर या फिर अपने लास्ट 2 years में आप स्टार्ट कर सकते हैं थोड़ा देखना, फिगर आउट करना कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दूं, एटलीस्ट अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लूं, क्योंकि ऑप्शनल क्लासेस 3-4 महीने में आप ले सकते हैं अगर इफ़ यू वांट टू गो फॉर कोचिंग। पढ़ाई भी आप 4-5 महीने में कर सकते हो। तो अगर आप कॉलेज से निकलते निकलते आपके पास ऑप्शनल के नोट्स रेडी हैं एंड आपने पढ़ चुके हैं, तो आपके पास बहुत बड़ी एज है एज़ कम्पेयर टू पीपल जिनका वो रेडी नहीं है, एंड फिर शायद आप जॉब के साथ भी तैयारी कर सकते हो। तो अगर कॉलेज के टुवर्ड्स द एंड या फिर सेकेंड हाफ ऑफ कॉलेज आप यूपीएससी के लिए यूटिलाइज कर लो, तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज दैट यू कैन हैव। उसके अलावा आप इकोसिस्टम में आ जाओ, एंड जैसे मेरे केस में भी यही था कि फर्स्ट ईयर आफ्टर माई कॉलेज आई हैड टू वर्क बिकॉज आई वॉज ऑल्सो नॉट फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फाइनेंशियल बैकग्राउंड। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं काम ना करूं, और मुझे ये भी लगता था कि अगर यूपीएससी नहीं वर्कआउट करता है तो मैं क्या करूंगा। सो एटलीस्ट आई हैव 1 year ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस। कुछ कनेक्शंस भी बना के रखे थे मैंने कि अगर जस्ट इन केस नहीं होता है तो आई कैन ऑलवेज गो बैक टू माई पेरेंट कंपनी या फिर समवेयर एल्स इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो आई थिंक वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप करने के लिए वो 1 साल का काम करना वॉज बेनिफिशियल फॉर मी। बट फॉर समवन एल्स हु थिंक्स कि उन्हें काम नहीं करने से, आई हैव अ फ्रेंड सृष्टि सिंह फ्रॉम माई ओन कॉलेज, शी डिड नॉट जॉइन एनी कंपनी आफ्टर कॉलेज। वो तैयारी करके इन हर 2020 अटेम्प्ट इटसेल्फ शी गॉट रैंक 78। सो ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे पास जो लोगों ने राइट आफ्टर कॉलेज निकल के क्रैक किया एंड एट एन अर्ली एज दे स्टार्टेड जॉइनिंग द सर्विस। सो आई थिंक पर्सनल डिस्क्रिप्शन अगेन इन दिस, बट कॉलेज में थोड़ा ओरिएंटेशन अगर होगा तो एज ज़रूर मिलेगा आगे जाके। अभी जैसे जस्ट प्रीलिम्स हुआ है फॉर 23 एंड देयर इज अ टाइम फ्रेम फॉर मेंस टू कम इन, तो इस बीच में कैसे तैयारी करनी चाहिए, किस तरफ फोकस करना चाहिए, कैसे आप अपने इन तीनों स्टेजों को बेटर प्लान कर सकते हो? सर जैसे इसमें अभी कितना है हमारे पास, अराउंड 100 to 105 डेज हैं टू मेंस, एंड सही मायने में मेंस की तैयारी अभी होती है। आप जितने भी नोट्स बना लो, आप सब कर लो, कुछ याद नहीं होता उससे पहले, एंड आप जब टेस्ट सीरीज लिखना स्टार्ट करते हो 3 hours ड्यूरेशन में, तब ज़्यादा तैयारी अच्छे से होती है। तो अभी बहुत क्रूशल टाइम स्टार्ट हो चुका है। सो मैं क्या बोलूँगा, क्योंकि प्रीलिम्स इतना थोड़ा टफ आया था इस बार, काफ़ी रैंडम पेपर था, तो उसको देखते हुए आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस बार कट ऑफ कहीं भी जा सकती है, हर साल ऐसी होता है। तो आई थिंक थोड़ा सा वेलनेस ब्रेक ले लो आप, एक हफ्ते का, यू गो ऑन अ ट्रिप, मीट योर फ्रेंड्स, डू समथिंग, वापस आके आप एथिक्स स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज एथिक्स एक तो सब्जेक्ट ऐसा है कि पढ़ने में मज़ा आता है उसको, एंड जैसे मैंने तो द्विज और सुब्रतोष के साथ एक
गूगल मीट पे पूरा सब्जेक्ट तैयार किया था, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप 2-3 लोगों को ले लो, आप एग्जाम्पल्स की एक आइटनरी तैयार करो, आप हर टॉपिक पे मल्टीपल डायमेंशंस में रेडी करो, तो आप वो करना स्टार्ट करो। जब तक आपका प्रीलिम्स रिजल्ट आ रहा है आपका एथिक्स पूरा हो जाएगा तैयार, और 1-2 टेस्ट भी लिख दो आप एथिक्स के उसके बाद। फिर जैसे आपका रिजल्ट आ जाए एंड यू मेक थ्रू, गो फॉर जीएस, स्टार्ट योर ऑप्शनल। ऑप्शनल को साथ साथ चलाना है, एंड ऑप्शनल इज़ द की टू गेट टू द गुड रैंक इन दिस पेपर, तो यू कैन नेवर एवर इग्नोर योर ऑप्शनल। तो आप ऑप्शनल अच्छे से करते हुए चलो, मे बी डिवाइड योर वीक इन वीक, लाइक 4 days आप ऑप्शनल करोगे, 3 दिन आप जीएस करोगे। ऐसे को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि मुझे तो शायद ऐसे और एथिक्स ही एक अच्छी रैंक तक लेकर गया है। तो ऐसे आप लिखो, जैसे वीक में एक टेस्ट लिखो आप ऐसे का, आप 2 ऐसे लिखो, अच्छी जगह वैलिडेट कराओ, बी मोर ऑर्गेनिक इन योर एसेज एंड राइट एज मच एज यू कैन। तो मेंस में आप जितना लिखोगे उतना सीखोगे। अपने नोट्स कंसोलिडेट करो, लास्ट महीने में फिर रिवीजन करो, फिर से आप टेस्ट लिखो। सो आई थिंक दिस थिंग ऑफ मेकिंग नोट्स, राइटिंग टेस्ट पेपर्स एंड रिपीटिंग ऑल इट ओवर एंड ओवर अगेन विल बेनिफिट यू इन मेंस। यूपीएससी की तैयारी में व्हाट आर कपल ऑफ मस्ट हैव्स कि जो करना ही करना है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसको हम जितना अवॉइड कर सकें उसको हम कैसे टैकल करें? तो अगर मैं ऐसे 3 पॉइंट सोचूं कि जो आपको करने ही चाहिए, तो उसमें पहला पॉइंट मैं ये बोलूँगा कि आपको अपने ऑप्शनल को नहीं इग्नोर करना चाहिए, मतलब ऑप्शनल को अच्छे से तैयार करना चाहिए। क्योंकि अगर आप कितना भी स्कोर कर लें जीएस में, अगर आपको ऑप्शनल में आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट में नहीं आ रहे हैं, तो आपको शायद अपनी डिज़ायर्ड सर्विस ना मिल पाए। दूसरा पॉइंट ऐसा है कि आप प्रीलिम्स और मेंस को एक होलिस्टिक प्रोसेस, या फिर दोनों को एक सिमिलर मोनोलिथ जैसा लेकर तैयार करें। अगर आप अलग अलग प्रिपरेशन करोगे तो आपके प्रिपरेशन उतनी होलिस्टिक नहीं हो पाएगी, और मे बी मेंस में जाके यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि मस्ट डू है इज़ रिवीजन, एंड यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग योर सब्जेक्ट सो मैनी टाइम्स कि आपको वो चीज़ें नेचुरली याद होने लगें। आई ऐड वन मोर पॉइंट टू दिस इज़ दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ एंड योर फिजिकल हेल्थ। जैसे कुछ लोग होते हैं कि दे आर नॉट गोइंग आउट, दे आर नॉट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी, उससे लेथार्जिक फील करने लगेंगे। एंड अगर आपको बॉडी लेथार्जी होगी तो आपके ब्रेन में भी लेथार्जी आएगी, एंड आपका ब्रेन उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो आई थिंक ये बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत ज़रूरी है, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस इकोसिस्टम में रह के इतनी एंग्जाइटी, इतनी ज़्यादा मतलब समटाइम्स डिप्रेशन लोगों को हो जाता है, एंड पीपल गो थ्रू अ लॉट। तो उन सबको भी ध्यान में लेके अगर आप तैयारी करेंगे, आई थिंक दैट विल रीप बेनिफिट्स। मेंटल हेल्थ की अगर बात करें तो अभी आजकल सोशल मीडिया पे देयर आर मल्टीपल थिंग्स, देयर आर मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स जो चीज़ों को प्रोवोकेट करते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज को चैनलाइज भी करते हैं। बट यूपीएससी की स्पेसिफिकली अगर तैयारी की जाए तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जस्ट मूव अवे, जैसे यू ऑल्सो मेंशन कि यू आर नॉट देयर ऑन सोशल मीडिया। तो हाउ डज वन फोकस इन एन इंडिविजुअल सेटअप मेंटल हेल्थ में, या अपने घर पे रह के कैसे मेंटल हेल्थ पे फोकस किया जा सकता है? तो क्या होता है इसमें, सिर्फ मेरे साथ जैसे हुआ कि मेंटल हेल्थ में माई मेंटल हेल्थ डिप्ट फ्रॉम, क्योंकि मैं बहुत सोशल इंसान हूँ, एंड ये प्रिपरेशन आपको काफ़ी सेक्लूडेड फील कराती है। तो उस वजह से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, एंड आई स्टार्टेड डेवलपिंग प्रॉब्लम्स ऑफ स्लीपिंग एंड प्रॉब्लम्स विद माई एंग्जाइटी, और ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे आने लगी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने पहली चीज़ तो ये करी कि अपना लिमिट किया थोड़ा कि इतने ही घंटे पढ़ना है। बिकॉज आप एक बार इसमें घुस जाते हो ना तो आपको ऑब्सेशन होने लगता है पढ़ने से। सो पहले वो 8 घंटे होते हैं, फिर वो ओवरबोर्ड होकर 9-10 हो जाते हैं, एंड यू स्टार्ट बर्निंग आउट योरसेल्फ। तो मुझे अभी भी याद है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं रात के 3 बजे भी पढ़ रहा हूँ, एंड आई रियलाइज़ कि यार ज़्यादा हो गया आज थोड़ा, एंड वो अगले दिन भी स्पिल ऑफ होगा, एंड इट विल इफेक्ट योर परफॉर्मेंस ऑन द नेक्स्ट डे ऑल्सो। तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम्स हो रही थी कि मैं बर्नआउट हो रहा था, मैं कम्प्लीटली सेक्लूडेड था लोगों से। इनिशियली मैं बात नहीं कर रहा था, मेरा पीयर ग्रुप जो बाद में बना वो इतना स्ट्रांग नहीं था, सपोर्ट सिस्टम जो था मेरा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, एंड फियर एक जो होता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम थी। तो जिसको ख़त्म करने के लिए मैंने प्लान बी पे काम किया। तो मेंटल हेल्थ में मैंने, जैसे मैं जब था तो कोविड टाइम था, तो काफ़ी चैलेंजिंग हुआ मेंटल हेल्थ को मैनेज करना। But then I have consulted a psychologist also through this process. I've taken therapy. I have taken help from my brother. So my elder brother was a source of constant support, and he was there. And whenever I wanted him to be, मैं कभी-कभी अपने घर से जब I was so exhausted, so I used to go to Ahmedabad where he lives. I used to stay some time with him. तो आप ऐसा support system अपना बना के रखो एक, जहाँ जिसको आप कुछ बता पाओ, कुछ बोल पाओ. Have a group of friends जो आपको सुनने के लिए तैयार हों,
क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इतने लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, दे थिंक कि यू नो दिस इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, बट पीपल हु केयर फॉर यू विल बी देयर फॉर यू. सो आई थिंक उन लोगों को पकड़ के रखना है. जैसे मैंने सेक्लूजन ले लिया था इनिशियल फेज में, वो सेक्लूजन नहीं लेना है आपको. एक मॉडरेट सेक्लूजन लेना है, बट यू शुड ऑल्सो बी ओपन टू सम पीपल समटाइम्स. सो आई थिंक सर कुछ ये पॉइंट्स मेरे दिमाग में आते हैं जो वन शुड डू. व्हाट्स द मोस्ट मेमोरेबल जर्नी, मेमोरेबल पॉइंट इन योर यूपीएससी जर्नी? तो सर इसमें मैं बोलूँगा कि मेमोरेबल पॉइंट मेरे साथ हुआ था जब मैं पहली बार ढोलपुर हाउस गया था 2021 में. क्योंकि जब तैयारी करना शुरू किया था, मुझे याद है कि पहले दिन जब मैंने न्यूज़पेपर खोला था तो आई रेड जीएसपी कि जीएसपी जो है वो यूएस ने कैंसिल किया था इंडिया का जीएसपी स्टेटस. दैट वाज व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. तो मुझे नहीं पता था कि जीएसपी क्या होता है. उस दिन मुझे कुछ आइडिया नहीं था. एंड मैं जब ढोलपुर हाउस गया तो आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर दैट डे. उस दिन कुछ जीएसपी की न्यूज़ आई थी. सो आई जस्ट फेल्ट लाइक द लाइफ टुक एन एंटायर सर्कल कि मैंने जब 2019 में पहली बार न्यूज़पेपर पढ़ा था, एंड अब 2 साल बाद आई एम गोइंग इन द यूपीएससी भवन टू गिव माई इंटरव्यू. तो मुझे थोड़ा एक प्राउड फीलिंग आई कि ओके यहाँ तक आ गए हैं तो शायद इससे आगे भी चले जाएंगे. सो दैट वाज माई फर्स्ट इंटरव्यू गोइंग इनटू द यूपीएससी. आई थिंक वाज वन ऑफ माई मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट वेयर आई कनेक्टेड दैट जीएसपी विद द जीएसपी विच आई डिड नॉट नो टू द जीएसपी दैट फाइनली आई न्यू अबाउट. एनी मैसेज यू वुड लाइक टू गिव आउट टू द एस्पिरेंट्स जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं या फिर आगे आने वाले, और कोई इलाहाबाद के भी एस्पिरेंट्स हो हमारे कॉलेज के जो असद सर को देख रहे हो अभी? मेरा मैसेज एक यही रहेगा कि जितने भी आपके फेलियर्स हो रहे हैं ना इस जर्नी में, अगर आप ऑलरेडी इस जर्नी में चल रहे हैं तो उस फेलियर्स को देख के आप सिस्टम को ब्लेम मत करो. जैसे मेरे साथ क्या हुआ था जब मैं 2021 में फेल हुआ था, आई स्टार्टेड ब्लेमिंग द प्रोसेस कि यार इतना रैंडम प्रोसेस है, मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है. तो अगर आप सिस्टम को ब्लेम करना शुरू करते हो, आपकी अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाती. तो अगर मैं ये करता रहता, मे बी इस साल में मेंस में वो गलतियाँ नहीं सुधार पाता. तो जैसे मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे बोला कि देख तो ले एक बार कि मतलब क्या ऐसा है जो लोग लिख रहे हैं तुम नहीं लिख रहे हो. जस्ट डोंट ब्लाइंडली ब्लेम द सिस्टम. तो मैंने देखा एंड आई रियली फाउंड समथिंग जो काम करने लायक थी और उसमें मैंने काम किया. तो प्लीज़ जो भी तैयारी कर रहा है, दिस इज़ माई मैसेज टू ऑल ऑफ़ यू दैट यही सिस्टम है जिसके थ्रू आपको क्वालिफाई करना है. यू हैव टू गेट थ्रू दिस सिस्टम, यू हैव टू मेक इट टू द लिस्ट थ्रू दिस सिस्टम ओनली. तो आप उसको रिस्पेक्ट करो, उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी, उसकी रैंडमनेस को एक्सेप्ट करो एंड अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करके उनको आइडेंटिफाई करके उन पर काम करो. डोंट ब्लाइंडली ब्लेम द सिस्टम. यू आर अ पार्ट ऑफ इट, यू हैव टू गेट थ्रू इट एंड पीपल आर गेटिंग थ्रू इट. आई एम वेरी हैप्पी टुडे दैट आई फाइनली मेड इट. And I hope that everyone and anyone who's hoping to get a good rank, even better than this, will be able to make it too. इस पॉइंट में लगता है कि जैसे अगर 2200 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं तो all of them are equally deserving. That's what I feel. क्योंकि बहुत मुश्किल है उस लॉट तक पहुंचना भी. एंड उसके बाद भी कोई इंसान सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो मतलब लक फैक्टर सर इसमें एक है विच वर्क्स. क्योंकि अगर आपका कहीं इतना रैंडम प्रोसेस जो आपका बेस्ट पेपर होता है उसमें आपके सबसे कम नंबर आते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है. तो आई थिंक लक एक फैक्टर है जो प्ले कर रहा है. दूसरा फैक्टर है कि कभी कभी कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज होते हैं, जैसे किसी का ऑप्शनल में स्कोर नहीं आ रहा है, तो वहाँ आई थिंक लक इज़ नॉट द फैक्टर. अगर आपका जो चीज़ें आपने आइडेंटिफाई कर ली हैं वहाँ आपका स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है फॉर सम रीज़न, आई थिंक देयर इज़ अ वर्क दैट कैन यू डू ऑन दैट पार्ट. उसके अलावा भी अगर आपने सब कुछ काम कर लिया एंड यू आर कमिंग क्लोज टू द लिस्ट एंड स्टिल नॉट एबल टू मेक थ्रू, सर आई थिंक दिस इज़ written in destiny. There are some things that are not supposed to work out in the way that you want to. तो सर आई थिंक वो एक पार्ट तो है, बिकॉज इतना छोटा लॉट है ऑफ पीपल जो सेलेक्ट हो रहे हैं एंड आउट ऑफ सो मैनी थाउजेंड ऑफ डिजर्विंग पीपल. तो आई थिंक डेस्टिनी प्लेज इट्स पार्ट टू इन द सेम प्रोसेस. दैट्स व्हाट आई थिंक. सो यू हैव स्कोर्ड 113 ऐसे. क्या तरीका है ऐसे प्रिपेयर करने का? जनरली अगर बात की जाए ऐसे की तो द जनरल आइडिया इज़ कि आप मल्टीपल इंफॉर्मेशन पहले तो उसमें फीड करो एंड कोट एज मच एज पॉसिबल, कि मेक इट एज इंफॉर्मेशन हैवी दैट, क्योंकि एनी हाउ यूपीएससी की तैयारी जो कर रहा है उसको बहुत नॉलेज होती है. बट व्हाट्स योर अप्रोच? क्या चीज़ें वर्क करती हैं, क्या चीज़ें नहीं वर्क करती हैं? हाउ डज लाइक उसमें तैयारी को आप प्रैक्टिस को कितना एट्रीब्यूट करोगे? तो इसमें क्या हुआ था लास्ट ईयर 2021 वाले मेंस में मेरा स्कोर 117 था विच वॉज बिलो एवरेज लास्ट ईयर. एंड इस साल मेरा स्कोर 130 आया है विच इज़ अबव एवरेज इस ईयर, बिकॉज इस बार का एवरेज कुछ 110 या ऐसा कुछ है.
तो मैंने अपना स्ट्रैटेजी बहुत स्टार्कली चेंज करी है एंड आई थिंक दिस इज़ एक्चुअली समथिंग विच वर्क फॉर मी. जैसे क्या होता है, जैसे आपने बताया भी कि आप इन्फॉर्मेशन हैवी कर दोगे चीज़ों को, ऐसा मतलब क्राउड मेंटालिटी कुछ चल रही है कि जितना ज़्यादा कोट करा जाए, जितने बुक्स का नाम लिखा जाए, जितने स्कॉलर्स का नाम लिखा जाए, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल यूज़ करे जाएँ, उतना ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं. बट इसमें क्या होता है ना, जैसे अगर ये एग्जाम्पल या कोट अगर नेचुरली नहीं आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान है जो बहुत सारी किताबें पढ़ता है, उसको ये चीज़ नेचुरली नहीं आएगी, नेचुरली ही आएगी, वो फोर्स नहीं करेगा. बट कोई ऐसा इंसान जो ज़बरदस्ती इसको कोट करना चाह रहा है, वो दिखेगा एंड ऐसे विल लुक लेस ऑर्गेनिक. सो मैंने क्या किया था कि मेरे पास इतने एग्जाम्पल नहीं होते थे मतलब कोट करने के लिए, तो मैंने ऑर्गेनिकली अपना ऐसे लिखा. एंड यूपीएससी रिवॉर्ड्स कि आपको जो ऐसे हो वो आपकी पर्सनालिटी को मैच करता हो, तभी वो आप ऑर्गेनिकली लिख पाओगे. पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट, सिंपल ऐसे होना चाहिए. आप जितनी सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे उतना अच्छा आप कन्वे कर पाओगे एग्जामिनर को. क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऐसे में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम लिखते हैं और हमें लगता है कि हमने ये चीज़ बहुत अच्छी कन्वे कर दी है, बट जो सामने पढ़ रहा है एग्जामिनर, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि आपने लिखा क्या है. तो वो डाइवर्जेंस ऑफ थॉट, अगर जैसे ही आपके और एग्जामिनर के बीच में वो डाइवर्जेंस ऑफ थॉट होगा, वहाँ आपके मार्क्स कटेंगे. तो जितना वो कन्वर्जेंस लाने के लिए आपको सिंपल ऐसे लिखना पड़ेगा. थर्ड थिंग, इट्स गुड टू कोट अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल, बट एग्जाम्पल्स को अपने ऐसे का मेन बॉडी ना बनाएं. जैसे क्या होता है नॉर्मली ये अप्रोच लोग यूज़ करते हैं कि जैसे ऐसे आया, उन्होंने GS 1 2 3 4 के टॉपिक वाइज एग्जाम्पल लिस्ट करना शुरू कर दिया कि अब मैं आर्ट एंड कल्चर एग्जाम्पल दूंगा, अब IR का दूंगा, अब मैं इसका एग्जाम्पल एंड उसका एग्जाम्पल. अब इन एग्जाम्पल्स को कनेक्ट हम नहीं कर पाते, और ऐसा लगता है कि इट्स लाइक अ कलेक्टेड चंक्स ऑफ एग्जाम्पल. एंड उसमें फिर वो ऐसे वाला मज़ा नहीं आता, बिकॉज anyone who is checking essays may be someone who has studied literature for probably I'm not sure who is checking it, but वो इंसान जो है वो चाहता है कि आप पहले बताएं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ऐसे देखूं तो उसमें आपने एक स्टोरी से स्टार्ट किया, देन यू गो अहेड टू एक्सप्लेन सम टर्म्स कि आपके लिए वो टर्म्स क्या मायने रखते हैं और इस ऐसे में आप उन टर्म्स को कैसे एक्सप्लेन करने वाले हो. Then there can be small intro कि मैं in this essay I'm going to we'll talk about this. So आप ये सब इतना simplify कर रहे हो एग्जामिनर के लिए to read your essay. Then divide your essay in some sections जो आपकी interpretation होंगे उस topic के, और उन sections में आप अपना view लिखो and उस view को example से support करो. Do not write example and then write your view about it, because then it will look example heavy and it will not look organic. तो आप अपनी लैंग्वेज में फर्स्ट यू डिफाइन व्हाट इज़ योर व्यू, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, एंड देन सपोर्टेड विद एग्जांपल. तो इसके थ्रू आपका एक फ्लो बना रहेगा. प्लस मुझे एक और पॉइंट जो ध्यान में आ रहा है अभी, डू नॉट अंडरलाइन, ओवर अंडरलाइन, डू नॉट यूज़ अ लॉट ऑफ बॉक्सेस इन योर ऐसे. मैंने एक भी वर्ड अंडरलाइन नहीं किया था अपनी यूपीएससी में. इस बार टेस्ट सीरीज में कुछ में करा हुआ है मैंने, आई लर्नड इट लेटर, कि जितना आप अंडरलाइन करते हो ये सब करते हो, ऐसे पढ़ने वाला आराम से बैठ के पढ़ रहा है आपका ऐसे, ही इज़ नो हरी. यूपीएससी एग्जामिनर बहुत अच्छे से कॉपी चेक कर रहा है, तो उनको अगर आप अंडरलाइन करते हो इट बिकम्स अ लिटिल लेस प्लीजिंग टू द आइज, और वो थोड़ा सा टेक्निकल और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव लगने लगता है, जबकि ऐसे शुड बी लाइक आर्ट, मतलब वो फ्लो होना चाहिए. तो आई थिंक ओवर अंडरलाइन करना, ज़्यादा एग्जाम्पल कोड कर देना बिना अपना व्यू रखे हुए, फ्लो बिगड़ जाना, या फिर उन एग्जाम्पल को कनेक्ट ना कर पाना, एक ये इशू होता है. फिर एक और मैं स्ट्रेटजी से यूज़ करता था कि जैसे मैं एक स्टोरी स्टार्ट करूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने इस बार यूज़ किया था वो दूसरा ऐसे पार्ट बी में जो मैंने चूज़ किया था, द बेस्ट टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज शाइनिंग. सो आई स्टार्टेड विद द स्टोरी ऑफ COVID-19 कि देयर वाज अ टाइम व्हेन द सन वाज शाइनिंग एंड आवर हेल्थ सिस्टम वाज नॉट सो ओवरबर्डन, बट वी डिड नॉट डू एनीथिंग टू रिपेयर दैट सिस्टम और टू प्लग इन द लूप होल्स. And now when COVID came and the sun is not shining anymore, we are not able to fix that and it's overwhelmed. तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था and वो डायरेक्टली थीम पे हिट किया था. फिर मैं पूरा अपना ऐसे बात किया and towards the closing I again came back to the same story of COVID-19 and I gave it a positive flip कि अभी जैसे ही we came out of second wave, we are trying to plug in those loopholes that were not there, and this is the time when we are repairing the roof when the sun is shining high in the sky or something like this. So आपका ऐसे एक पूरा लूप बन जाता है. It gives you a holistic structure. It looks like a good story that you've told, and it satisfies the examiner, because एक normal human tendency होती है कि आप कुछ पढ़ना शुरू करते हो ना, you want a conclusion to it, and this kind of loop that you make, you start with a story, you end with something like a story, and you connect it with a loop. So this is what I used to follow, and I think that worked for me. Keep it simple, keep it very simple,
quote good examples, relevant examples, connect example with your thought, and just make it as organic as possible. I think this will fetch you good marks in essay. एंड 1200 वर्ड का ऐसे जनरली जो होता है, तो हाउ डज वन प्रैक्टिस इट, क्योंकि इसमें मल्टीपल ओपिनियंस की भी एक ज़रूरत होती है. देयर इज नो डिफाइंड मेथड ऑफ व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, एंड इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग एट द एंड ऑफ द डे. So what are certain channels या resources that can be used, and how does one get into that preparation or practice mindset, specifically अगर ऐसे की बात की जाए? तो ऐसे में से मुझे लगता है कि एक तो जो हैबिट है बुक रीडिंग का, इट्स अ गुड हैबिट. आप किताबें पढ़िए, मतलब यूपीएससी से हट के भी कुछ किताबें पढ़ना शुरू करिए. फिक्शन ही पढ़ रहे हैं, फिक्शन पढ़िए. यू कैन रीड सम अदर बुक्स लाइक फॉर एग्जाम्पल आई वॉज रीडिंग द इंडिया वे बाय डॉक्टर एस जयशंकर. कहीं ना कहीं IR के कोई रिलेटेड एग्जाम्पल कोट करने का काम आ जाएगा. तो ये अगर आपका रिसोर्सेज थोड़ा वाइड बेस्ड रहेगा तो ऐसे में वो काम आएगा, बिकॉज ऐसी कोई तैयारी आप नहीं कर सकते हार्ड एंड फास्ट. यू हैव टू कीप रीडिंग स्टफ. इवन यू कैन कोट फ्रॉम मूवीज़, पीपल आर कोटिंग फ्रॉम मूवीज़. लोग पोएम्स को लिख के आ रहे हैं. तो इतना ज़्यादा यूपीएससी ने आपको फ्रीडम दिया है क्रिएटिव एक्सप्रेशन का ऐसे के वाले पेपर में. तो आप एक्सप्रेस करो उसको और प्रैक्टिस करो, क्योंकि सबसे बड़ा इनर्शिया होता है 1200 वर्ड लिखना. इज़ नॉट ईजी टू राइट 1200 वर्ड्स इन 1.5 आवर. तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप उसको पेपर्स लिखोगे, एवेल्यूएटर्स से एवेल्यूएट करवा के फिर उस पर इम्प्रूव करोगे. आई थिंक दिस प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने मेंस और प्रीलिम्स के बीच में कुछ 8-9 टेस्ट लिखे थे फुल लेंथ ऐसे के. लोग 2-3 ही लिखते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं लिखते. सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू learn and then apply your learning in a test and then evaluate it and then again go for it. So this process I think will help, sir. And what has been your approach specifically for GS4? तो GS4 में इस बार I got the score of 119, which is a jump of 25 marks from last year, which I am so glad that I was able to do. तो पिछली बार क्या हुआ था सर, मैंने जो अपना जो मैंने यूज़ किया था अप्रोच, वो पेपर मैं एक थ्योरी की तरह लिख रहा था उसको, कि GS का पेपर की तरह पॉइंट लिख दिए, ख़त्म किया, 5 पॉइंट लिखे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कंक्लूजन ऐसे लिख रहा था. बट वो रिवॉर्ड नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बेसिक कंटेंट तो जा रहा था कि 94 मार्क्स आ जाएंगे, बट लोग 114 नंबर, 115 नंबर, 125 स्कोर कर रहे थे. और वहाँ इंपॉर्टेंट है, ऐसे और एथिक्स अगर आपने अच्छा स्कोर कर दिया, इट विल कवर योर मिस्टेक्स इन GS 1 2 3. तो इस अप्रोच में क्या हुआ, पहले मैंने जैसे प्रीलिम्स खत्म हुआ, मैं द्विज और सुब्रतोष जो मेरे फ्रेंड थे, हम लोग गूगल मीट पे आए. हमने वन नोट पे एक ड्राइव बनाई जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 से लेकर के 2021 तक के लिखे, एंड वी स्टार्टेड डिस्कसिंग दोज क्वेश्चन साथ में. और एक बंदा जो था वो टाइप करता रहता था उस पर. तो हम लोगों ने हर टॉपिक को अब अलग अलग डायमेंशन दो. दैट इज़ द फर्स्ट इनपुट टू राइट अ बेटर आंसर फॉर एन एथिक्स पेपर. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आस्किंग अबाउट कंपैशन, तो कंपैशन को आप अलग अलग फ्लिप दे सकते हो. यू कैन गिव इट अ कंपैशन फ्लिप इन एनवायरनमेंट. कैसे कंपैशन हो सकता है इंटरनेशनल रिलेशन में, रिफ्यूजी क्राइसिस में कैसे कंपैशन हो सकता है. इसी में आप आ जाओ, यू कैन टेक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे कंपैशन हो सकता है. हिस्ट्री में कहाँ कंपैशन के एग्जाम्पल आपको मिल सकते थे. गवर्नेंस में कंपैशन कैसे दिखाया जा सकता है. तो आप जो सिलेबस पढ़ते हो उसी में इतने डायमेंशन निकल के आ जाते हैं, एंड यू पुट दोज डायमेंशंस इन योर एसे का आंसर. तो आपका आंसर बहुत मल्टी डायमेंशन रहेगा. सेकंड, कोट एज मेनी एग्जांपल्स एज यू कैन. अब इन्हीं डायमेंशन के अंदर आप एग्जांपल दे दो. फॉर एग्जांपल गवर्नेंस में कंपैशन कैसे आ सकता है, एग्जांपल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. तो आप इससे ना कनेक्ट कर रहे हो अपने बाकी GS पेपर्स को भी. यू आर टेलिंग एग्जामिनर दैट यू अंडरस्टैंड कंपैशन, यू अंडरस्टैंड अ डायमेंशन ऑफ कंपैशन, एंड यू अंडरस्टैंड वेयर यू आर अप्लाइंग कंपैशन. तो आप ये सब कुछ एग्जामिनर को कन्वे कर रहे हो. दूसरी चीज़, थर्ड चीज़, कि हैव सम कोट्स हैंडी टू योर सेल्फ फ्रॉम सम बिग पीपल. फॉर एग्जाम्पल कभी कभी मैंने लोगों को देखा है, विक्टर फ्रैंकलिन की कोई कोट हो गई, महात्मा गांधी की बहुत सारी कोट्स हैं विच पीपल यूज़, अब्राहम लिंकन की कोट हैं. तो वो कोट कभी कभी मैं पर्सनली बहुत टफ होता था कोट्स को याद रखना, बट उनका जिस्ट याद रह जाता था तो कहीं ना कहीं काम आ जाता था. कभी कभी यू कैन स्टार्ट योर आंसर विद अ कोट. तो ये एथिक्स के पेपर में एग्जामिनर को चाहिए होता है कि आप थोड़ा सा क्रिएटिव लिखें, आप लिखें थोड़ा ऑब्जेक्टिव, बट make it more realistic. Show him that you understand the dimensions, you understand the application of it, because ultimately वो ethics जो आप पढ़ रहे हैं आपको कल को सर्विस में अप्लाई ही करनी है. So I think that is approach for the theory part. If I come to case study part, because मेरा case study में normally अच्छा स्कोर आता था, and मुझे लगता है सर एक जो ये तरीका है कि एक सेट पैटर्न फॉलो करना है केस स्टडी में, कि आपको हर केस स्टडी में एक इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर स्टेक होल्डर्स लिखने हैं, फिर स्टेक होल्डर्स की प्रॉब्लम्स लिखनी है,
इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है यूपीएससी में कि हम सब वो कर पाएँ, एंड एग्जामिनर भी थक जाता है वो एक सेम अप्रोच को रीड करते करते। तो आप क्या कर सकते हो, इसको और ऑर्गेनिक बनाओ, डायरेक्टली आप हिट करो वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर, डू नॉट वेस्ट टाइम, डायरेक्टली आप जो आपको लगता है कि चाहिए केस स्टडी में आप लिखो एंड एग्जामिनर विल रीड इट। सो ये आप या तो एक पैटर्न फॉलो मत करो, 2-3 पैटर्न बना लो, आप उनको फॉलो करो, डोंट मेक योर केस स्टडी सो मोनोटोनस। थर्ड पॉइंट फॉर केस स्टडी इज हैव सम सॉलिड practical applications. Be more specific. For example, just don't write कि getting an NGO to solve this issue. Write कि मैं NGO के थ्रू, इस इशू के थ्रू ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट करूँगा जिसमें मैं इतना अवेयरनेस क्रिएट करूँगा, या फिर समथिंग लाइक दिस. बी मोर एप्लीकेशन ओरिएंटेड इन इट. Towards the end, you can always, this is my last point, towards the end you can always write long term measures and short term measures. कि अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ये शॉर्ट टर्म मेजर्स ले रहा हूँ, बट एक ओवरऑल उसमें फॉर एग्जांपल अगर मुझे केस स्टडी दिया फीमेल फीटिसाइड की, तो फर्स्ट आई विल टेल हिम कि शॉर्ट टर्म में मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ इन दैट केस स्टडी, देन आई विल राइट एन ओवरऑल बेसिस पे फीमेल फीटिसाइड की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है इन अ वेरी लॉन्ग टर्म ऑन अ डिस्ट्रिक्ट. तो आप ये सब उनको दिखाते हो तो आई थिंक द एग्जामिनर फील्स के यू आर समवन हु हैज़ अ लॉन्गर रेंज ऑफ थॉट. आप प्रॉब्लम को मायोपिकली नहीं देख रहे हो, यू आर सीइंग इट इन अ वेरी होलिस्टिक मैनर एंड यू आर बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, यू आर गिविंग हिम very practical solutions. You are stepping into the shoes of an administrator and you are solving the problem there. So I think this kind of approach is good for case studies rather than being monotonous and writing just the usual stuff. I think sir these things will work out for ethics paper. तो इसमें मैं एक पर्सनल एनेक्डोट से स्टार्ट करूँगा. आई एम ऑलवेज स्टार्टिंग विद द पर्सनल एनेक्डोट. तो मेरे साथ क्या हुआ था 2021 में जब मैंने प्रीलिम्स दिया था, मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ था एंड मुझे कुछ 90 मार्क्स आ रहे थे फ्रॉम द आंसर कीज. और अभी तक जो ट्रेंड था 98 से 100 कट ऑफ जा रहा था इन द यूआर कैटेगरी. तो मुझे लगा मेरा क्लियर नहीं होगा पेपर एंड मैं इधर उधर भागने लगा. आई वॉज कमिंग टू दिल्ली कि मैं किसी RCA में, जामिया RCA में आके एडमिशन ले लूँ या कहीं और एडमिशन ले लूँ. आई वॉज ट्राइंग टू डू ऑल ऑफ दिस एंड आई वॉज इन द बस व्हेन द रिजल्ट केम 17 days लेटर कि मैं सेलेक्ट हो चुका था इन प्रीलिम्स एंड आई हैड वेस्टेड माई मोर देन 2 weeks. तो वो मुझे प्रॉब्लम लगी थी उस टाइम कि मैं मान लिया था कि नहीं हो पाएगा सिलेक्शन एंड आई वेस्टेड दो 17 days एंड इन द मार्कशीट आई एंडेड अप स्कोरिंग 98 मार्क्स, जो कि 90 से तो काफ़ी ज़्यादा थे और कट ऑफ वॉज ओनली 88 मार्क्स. तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो हमारी कीज़ आती हैं उसमें गलत आंसर दिए होते हैं एंड एक आंसर आपका अगर सही हो रहा है इट्स फेचिंग यू 2.67 मार्क्स. तो 2-3 क्वेश्चन ही आपको बाउंड्री से ऊपर ले जाते हैं. तो आई थिंक अभी क्योंकि पेपर भी ऐसा आया है कि काफ़ी इंटरप्रिटेशंस हो रहे हैं सेम आंसर के, सो एक ब्रेक 4-5 दिन का ब्रेक लेने के बाद आई थिंक पीपल शुड स्टार्ट रीडिंग देयर ऑप्शनल और GS4, बिकॉज GS 1 2 3 बहुत मेन स्पेसिफिक चला जाता है, बट ऑप्शनल और GS4 एक ऐसी चीज़ है जो आप अगर मे बी आप एक और अटैम्प्ट दे रहे हो तो इट विल हेल्प यू आउट देयर ऑल्सो. सो आई थिंक पीपल who have this hope of clearing, they think that they're close to the list, or even for everyone they can start reading optional or ethics. ethics सर एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि मुझे पढ़ने मज़ा आता था ethics. तो आप ethics करो, अपने नोट्स बनाना शुरू करो, एग्जाम्पल्स लेकर आओ और ज़्यादा, मे बी दोस्तों के साथ ethics पढ़ो. तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू रीड ethics and complete it by the time your prelims results are out. आपका अगर prelims result आने वाला है, आपने ethics का सिलेबस कर लिया है एंड आपने 1-2 टेस्ट भी लिख दिए हैं, आई थिंक यू आर वेरी वेल प्लेस्ड एंड यू हैव एन एज एटलीस्ट इन जनरल स्टडीज़ कि आपका 1/4 कंप्लीट हो गया जनरल स्टडीज़. इट्स अ वेरी बिग mental security that one get. So I think rather than depending upon the random answer keys and evaluating yourself again and again, start with ethics, enjoy it for the next 15 days and the results will be out. So I think this is the best time अभी से लेकर के दिसंबर जनवरी तक के आप ऑप्शनल को स्ट्रॉन्ग कर लो. अगर उनको अगला अटैम्प्ट देना है तो अभी ऑप्शनल आपकी क्लासेस नहीं लेनी है, आपको क्लासेस लेना है. अगर 2 महीने खुद नहीं ली थी क्लासेस, बट आई सपोर्ट के लेनी चाहिए क्लासेस, क्योंकि मैं बहुत इधर उधर भागा एंड देन फाइनली मेरा हिट कर रहा था सही जगह पे. तो मे बी यू गो अटेंड सम क्लासेस ऑफ योर ऑप्शनल, मेक योर नोट्स फॉर ऑप्शनल, और आप स्टार्ट करो थोड़े नोट्स कंसोलिडेट करना, ऑर्गेनिक नोट्स बनाओ. एक बार नोट्स बनाओ, उनके ऊपर और कुछ ऐड ऑन करो, फिर ऐड ऑन करो, करते रहो, ऐड ऑन करते रहो. तो आई थिंक दिसंबर तक इट्स अ गुड टाइम कि आप दिसंबर जनवरी तक के अपना ऑप्शनल पूरा आप सॉर्ट कर लो अच्छे से. उसके अलावा आप GS4 पढ़ के आप वो सॉर्ट कर लो. GS 1 2 3 के जो मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, इसका जो बेसिक रहता है वो ऑलमोस्ट हर साल सेम रहता है. तो वो बेसिक थ्योरी हम पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं.
and maybe January February के बाद we can come in more prelims mode and keep reading optional or some subject mean specific on the side. So I think this is the best time to prepare for optional and be very very thorough with it, because this is the subject that will take you, this is the paper that will take you into the list. So once again thank you असद, काफ़ी मज़ेदार रहा. ऐसे हम लोग we are sitting across the couch, थोड़ा orange color का है, but I think that will gain the attention of a lot of people in the right sense is what I think. You'll be joining IFS जैसे, मतलब that's Hopefully. your area of interest as Hopefully. well. So wish you all the luck and Thanks. success. मैं तो पर्सनली ये चाहूँगा कि इंस्टाग्राम की रील्स में अब असद जल्दी से इन लाइक एक्टिव पॉलिसी मेकिंग आई स्पॉट यू स्टैंडिंग नेक्स्ट टू, आई वोंट नेम द पर्सन, बट या building your niche for yourself. Thank you once again. Thanks a lot. Thank you so much for this opportunity that I got to talk to a lot of friends from this community. Thank you.